तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के बारे में, जीएसटी में हम देखेंगे कि जीएसटी क्या है और जीएसटी कैसे वर्क करती है। सो यू शुड हैव बीन थिंकिंग दैट द जीएसटी हैज़ कम बिफोर in 2017. So why I am making this video now? But I am making this video now because it is a review video, because at that time we are not aware of the shortcomings of the GST. We are not aware of the shortcomings of their benefit. What are the benefits? What are the shortcomings? So we can't analyze at that time. But after 4 to 5 years, we are in the state of analyzing. Not fully, but partially. About 30 to 40% we can analyze GST by now, but not fully. We will analyze now, because why we cannot fully analyze GST on the basis of its performance for only 5 years is this, because GST is a major change. It changed the whole structure. It changed the whole structure of taxes in India. So a major change can't be analyzed so quickly. About from 5 to 6 years, in short period of that time. So we will analyze GST in a very long period, but we will quick analyze it. मतलब अगर हम 5 से 6 साल के पीरियड में देखते हैं कि क्या इसके शॉर्टकमिंग्स थे, क्या इसके बेनिफिट्स थे और इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, रिव्यू करेंगे इसको। बस इस पे एनालाइज उतना डिटेल में नहीं करेंगे हम कि ये सही था गलत था, इस पे नहीं जाएंगे हम, सिर्फ एनालाइज करेंगे। मतलब डिटेल में नहीं, एकदम सिर्फ प्रोज और कॉन्स पे। प्रोज मीन्स बेनिफिट्स, कॉन्स मीन्स इट्स मतलब प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म पे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यू ऑल नो अबाउट इट, इट इज एन रिव्यू वीडियो। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? The meaning of destination based tax is that in a destination based tax. So why I am saying destination based tax? So basically there are two types of taxes. One is origin based tax, another is destination based tax. Origin based tax means the tax levied on every single individual who is involved in a goods manufacturing, supplying, retailing, wholesaling, etc. And destination based tax means that the only tax levied to the consumer at the final step. Means that in the origin based tax, for example, if a manufacturer manufactures a product, then he will sell to a supplier. So manufacturer will have to pay tax and then sell to supplier. On the same way, supplier will have to pay tax for getting the goods from manufacturer, and then he has to pay tax. Then he has to pay tax to the government, and then he can supply the goods to wholesaler. Wholesaler will do the same thing by giving the taxes back to government, and then wholesaler will sell to retailer, and the retailer will do the same way, and this process continues till the product finally reaches the consumer, and the consumer finally bought it on the MRP, maximum retail price, and he will use it. So but in this process, who really paid the tax? मतलब किसने really paid tax किया? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर था उसने जो टैक्स पे किया, उसने टैक्स पे कर दिया, लेकिन मान लीजिए उसने 2 रुपया टैक्स पे किया, जैसे कि उसने 5 रुपया का सामान बनाया, 5 रुपीज़ का, 2 रुपया उसका प्रॉफिट था तो 7 रुपये हो गए, और 2 रुपया उसने टैक्स पे किया तो 9 रुपये हो गए। तो वो अपना प्रोडक्ट जिसको उसने 5 रुपये में बनाया था वो 9 रुपये में बेचेगा। क्यों बेचेगा? 5 रुपये तो उसका बनाने का अमाउंट, 2 रुपया उसका प्रॉफिट, 7 रुपया। 2 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 रुपया उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, तो वो भी उसमें जोड़ के बेचता है ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। उस तरह सप्लायर 9 रुपये में रिसीव करेगा। तो मान लीजिए 9 रुपये में उसने रिसीव किया, 2 रुपया उसने अपना टैक्स लगाया उसमें 11, जो टैक्स उसने गवर्नमेंट को पे किया, और 2 रुपया अपना प्रॉफिट, तो 13 में बेचेगा वो। इसी तरह ये सिस्टम चलते जाएगा। सब अपने अपने जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसका जो जितना टैक्स पे करते हैं उतना वो अपने गुड्स पे
लगा देते हैं, उसका दाम जोड़ देते हैं, जिसके कारण वो उनको नुकसान नहीं होता है। अल्टीमेटली एक रिटेलर कंज्यूमर को सामान बेचता है, तो 17 रुपये का जो सामान है वो 19 प्लस 2 17, मान लीजिए 17 रुपये का सामान रिटेलर के पास आया, तो उसने अपना 2 रुपये प्रॉफिट लगाया 19 का, और 2 रुपये रिटेल का दाम आया, तो 17 और 4 हुआ 21 रुपये। तो 21 रुपये में कंज्यूमर ने खरीदा, और कंज्यूमर अब बेचेगा, सॉरी कंज्यूमर खुद कंज्यूम करेगा। तो अल्टीमेटली टैक्स किसने पे किया? हु पेड द टैक्स? कंज्यूमर। और क्योंकि सामान भी कंज्यूमर ने यूज़ किया है, सो इस सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी। इस सिस्टम में किसी और को टैक्स पे नहीं करना था। लेकिन खराबी कहाँ शुरू हुई? खराबी शुरू हुई कि अलग अलग जगह पर टैक्स क्यों लगे। मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे करे, सप्लायर गवर्नमेंट को पे करे, रिटेलर गवर्नमेंट को पे करे। क्यों भाई? अलग अलग क्यों? सो देयर इज नो नीड टू पे टैक्सेस इंडिविजुअली। सो इसलिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब टैक्स ट्रांसफ़र होगा। इसे मैन्युफैक्चरर बनाएगा तो मैन्युफैक्चरर को टैक्स नहीं देना है, मैन्युफैक्चरर अपना टैक्स ट्रांसफ़र कर सकता है सप्लायर को नहीं, और सप्लायर अपना टैक्स, मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, सप्लायर देगा। सप्लायर बोलेगा मैं टैक्स नहीं दूंगा, होलसेलर देगा। होलसेलर बोलेगा मैं टैक्स नहीं दूंगा, रिटेलर देगा। और रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर अपना सामान अल्टीमेटली कंज्यूमर को सोल्ड करेगा, तो कंज्यूमर से उसको टैक्स मिल जाएगा, उस टैक्स का पैसा भी इंक्लूडेड रहेगा उसमें, तो उसमें टैक्स पे हो जाएगा। तो डेस्टिनेशन मतलब सामान जहाँ जाना है वो ही टैक्स पे करेगा डेस्टिनेशन पर। और वो था ओरिजिन बेस, मतलब यहाँ से ओरिजिन हुआ तो ये पे करेगा पहले गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को पे करेगा। उसके बाद यहाँ गया तो ये पे करेगा, ऐसे नहीं। तो सबसे पहले अल्टीमेटली यही पे कर रहा था, इसको अपना टैक्स वापस मिल गया इसके थ्रू, तो वो तो ठीक है। पर अल्टीमेटली पे कौन कर रहा था? अल्टीमेटली पे तो यही कर रहा था ना, मैन्युफैक्चरर। अब अल्टीमेटली पे मैन्युफैक्चरर ही कर रहा था। मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया, फिर वो अपना 2 रुपये लगा के इसमें उसने अपना टैक्स वसूल लिया यहाँ से। तो इसके पास जितना में आया, तो इसने ये भी तो अपना उसमें फिर प्रॉफिट जोड़ेगा। तो ये मानते हैं कि इसने टैक्स पे नहीं किया डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली इसने भी किया। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ने किया, यानी ओरिजिन ने किया, जहाँ से शुरू हुआ प्रोडक्ट वहाँ से किया। यहाँ पे क्या आ रहा है कि डायरेक्टली जीएसटी में डेस्टिनेशन बेस्ड में डायरेक्टली कंज्यूमर कर रहा है। ओरिजिन बेस में क्या था कि डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है कौन? मैन्युफैक्चरर, जो कि ओरिजिन है सामान का। और यहाँ पे कौन पे कर रहा है? डेस्टिनेशन बेस्ड में कंज्यूमर, जो कि उसका कंज्यूम करने वाला है। तो ये दोनों में यही अंतर है। बाकी ये सब जो बीच वाले हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे थे। वो इस जीएसटी में भी करेंगे और ओरिजिन में भी करते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए जीएसटी को लाया गया। जीएसटी को इसलिए भी लाया गया क्योंकि अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, जैसे वैट, सीएसटी, ये सब, वो सब भी खत्म हो जाए। तो ये था जीएसटी। कितने टाइप के लाए गए? जीएसटी 4 टाइप के लाए गए। सबसे पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी लाया गया, मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। अब इन दोनों की कहानी क्यों? क्योंकि सबसे पहले जीएसटी एक ही था, सीजीएसटी। पहले क्या था कि जो एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम्स और सेंट्रल सर्विसेज टैक्स और सर्विसेज टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको वसूलती थी। और जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो स्टेट गवर्नमेंट वसूलती थी। ये सिस्टम चल रहा था पहले। जब जीएसटी लाया गया तो सरकार ने कहा कि वो सब अपने अंडर लेगी, मतलब वैट भी खुद लेगी, जीएसटी भी खुद लेगी, सर्विस टैक्स भी खुद लेगी। तो स्टेट ने अपोज किया कि हम अपने वैट में किसी को भी पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। अब गवर्नमेंट, वाई द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट अलाउइंग एनी बॉडी टू पार्टिसिपेट इन वैट? Why the state government does not want central government to participate in their VAT share? They are doing so just because VAT was a huge amount of revenue. Through VAT they got a huge amount of revenue. State governments got. क्योंकि VAT में क्या आता है कि जितने भी सामान खरीदे जाते हैं, गुड्स, उस सब का टैक्स, उस सब पे टैक्स लगता है। आप टूथपेस्ट खरीदे, ये मार्कर मैंने खरीदा है, इसके पे जो पेमेंट किया है मैंने, उस पर भी टैक्स लगता है। ये मार्कर, ये वाइट बोर्ड खरीदा गया है, उसमें भी टैक्स लगा है खरीदने में। कुछ भी खरीदा, ये कपड़ा खरीदा गया है, उसमें भी टैक्स लगा है खरीदने। तो जितने भी सामान खरीदे जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उन सब सामान के टैक्सेस को ही हम वैट लगता है।
और वो वैट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में। तो बताइए कि दिन भर में, एक दिन में, एक स्टेट में कितने सारे लोग खरीदी करते हैं। और एक बहुत सारे लोग तो बहुत चीज़ खरीदी करते हैं। अगर हर चीज़ पे वैट लगता है तो सोचिए कितना रेवेन्यू होगा। उस रेवेन्यू पे किसी को पार्टिसिपेट करवाना, किसी को हिस्सेदारी देना स्टेट गवर्नमेंट्स को मंजूर नहीं था। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप मेरे को वैट में हिस्सेदारी दीजिए, मैं आपको सेंट्रल जो टैक्सेस हैं उनमें हिस्सेदारी दूंगा। जैसे एक्साइज ड्यूटी पे पार्टिसिपेशन दूंगा, एक्साइज ड्यूटी पर, सेंट्रल सर्विसेज टैक्स पे, सर्विसेज टैक्स पे। तो गवर्नमेंट ने कहा, तब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। तो उसके बाद जीएसटी लेके आया गया। ये पूरे नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन में सेंट्रल और स्टेट के बीच में 11 साल लग गए। जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में 2006 में आ चुका था, पर इसका बिल आया 2017 में, पूरे 11 सालों में। तो ये एक सिचुएशन थी जीएसटी की इंडिया में। और हम बात करते हैं कि क्या और सिचुएशन थी। तो उसी की वजह से जब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पार्टिसिपेशन दिया गया सब में, तो उसको डुअल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया जीएसटी को। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट। तीसरा था एक आईजीएसटी। आईजीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आया कि मान लीजिए ये तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लग गया। जैसे इसका फॉर्मूला ये है कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है, दो शहरों के बीच ट्रेड हुआ, किसी दो ट्रेडर के बीच में, तो उस पर क्या लगेगा, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लग गया, 18% टोटल हो गया। पर अगर दो स्टेट्स के बीच में तब क्या होगा, इंटर स्टेट ट्रेड में क्या होगा। अगर बिहार और पंजाब में, या फिर अब यूपी और पंजाब में मान ले ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है, आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है आईजीएसटी में, कि अगर दो शहर के बीच के ट्रेडर्स के बीच में व्यापार हुआ, तो ये सारा टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में जाएगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अपने पास रखेगी, और जिस राज्य में इंपोर्ट हुआ है सामान उसको देगी उसमें हिस्सेदारी। जैसे मान लीजिए यूपी और पंजाब है, यूपी और पंजाब, यूपी से सामान खरीदा गया और पंजाब पहुंचा, तो टैक्स, तो इसमें जितना भी टैक्स लगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। और वो क्या करेगी, आधा उसमें से खुद रखेगी अपने पास और आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, क्योंकि सामान ये इंपोर्ट हुआ है इसलिए। तो ये बात है, ऐसे होता था, ऐसे है आईजीएसटी का फॉर्मूला। तो ये लाया गया। उसके बाद यूटीजीएसटी क्या है, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि यूनियन टेरिटरीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा चलाया जाता है, तो वहाँ पर क्या सिस्टम होगा, तो वहाँ पे सिर्फ सीजीएसटी रहता है। मतलब सीजीएसटी तो खैर वो स्टेट्स के लिए होगा, सीजीएसटी समझ लीजिए कि यूटीजीएसटी के नाम से चलता है। वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स वसूल करती है, पर एक्सेप्ट 3 यूनियन टेरिटरीज। तो मतलब ऐसे 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर एसजीएसटी भी लागू होता है। तो जैसे जितने भी यूनियन टेरिटरीज इंडिया में, जैसे कि मान लीजिए यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में, 8 यूनियन टेरिटरीज में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा भी है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के, तो वहाँ पर एसजीएसटी भी लागू होता है। तो वहाँ पर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों चलता है सेम वे में, और जो बाकी बचे 5 यूटीज हैं उसमें सिर्फ यूटीजीएसटी चलता है। तो 3 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन है वो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा। दिल्ली है, पुडुचेरी है, और अभी जो रिसेंटली वो जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ ऑन 5 अगस्त 2019 को, और क्या बनाया गया आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके, और उसके बाद एक और बिल हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम विभाजित करेंगे, पार्टीशन करेंगे। तो जे.एंड.के को अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेशन और जे.एंड.के को विथ लेजिस्लेशन बनाया गया। तो मतलब उस लेजिस्लेचर विधानसभा के साथ, तो वो जे.एंड.के है यूनियन टेरिटरी, ऐसा तो 3 यूनियन टेरिटरी जैसे हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट्स। अब नाउ व्हाट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी समझ में आ गया आपको। व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? इट इज ए सुप्रीम बॉडी फॉर टेकिंग ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग जीएसटी। ये एक सुप्रीम बॉडी है जीएसटी के रिगार्डिंग हर डिसीजन लेने के लिए, सुप्रीम है, फ्री है। तो जीएसटी में कौन सा कितने स्लैब होंगे,
what are the slabs, which atoms should place at which slabs, in which slab, what are the limitations of GST, what are the rules and regulations, when will GST will come to power, ये सब जितने भी डिसीजन हुए और होंगे, which atom should be freed from GST, which atom should be come in the limits of GST are decided by GST Council, which constitute of 33 members. Now it is a breakup of the 33 members, that 2 members come from the central government, 28 members comes from the state governments of 28 states, and 3 members come from state governments of 3 UTs. सिंपल ब्रेकडाउन है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बता देता हूँ मैं। जो 2 मेंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो कौन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नाउ निर्मला सीतारमन, एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस। जो जैसे कि हमने पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने कि एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, वित्त स्वतंत्र प्रभार, एक होते हैं राज्य मंत्री। तो ये जो वित्त मंत्री हैं और वित्त राज्य मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, उस काउंसिल के मेंबर्स हैं 2। और अब इसमें आता है कि जो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उन सब के हर स्टेट्स का एक अपना अलग वित्त मंत्री होता है, हर एक स्टेट का अपना एक अलग फाइनेंस मिनिस्टर होता है इंडिया में। ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर, और हर स्टेट के अलग फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो वो सब फाइनेंस मिनिस्टर्स के मेंबर होते हैं 28 स्टेट्स के। देखिए 28 है, 28 स्टेट्स है, हर स्टेट के एक फाइनेंस मिनिस्टर, 28 मेंबर्स ऑफ दिस। तो 28 और 230 हो गया। और जो 3 यूटीज़ हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, उसके भी तो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, सब होम मिनिस्टर होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे। तो उसके फाइनेंस, उनके भी 3 फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि 3 है यूटीज़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, जहाँ पर विधानसभा होती है 3। तो ये सब मिला के इतना हुआ 28 + 2 30 33। अब ये जीएसटी काउंसिल का कोई चेयरमैन भी होगा, चेयरपर्सन। इसका चेयरपर्सन कौन है? इस पूरे जितने भी मेंबर्स हैं से हेड कौन लग रहा है विद द पोजीशन? टेल मी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज सुप्रीम, एंड विद सेंट्रल गवर्नमेंट देयर आर 2 मेंबर्स, एक यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। So obviously union finance minister is its post is higher, so the union finance minister is its chairperson. So निर्मला सीतारमन इसके चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन सॉरी, नॉट मैन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटरी बात सामने आती है कि जो चेयरपर्सन होते हैं जीएसटी के, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी काउंसिल में दबदबा है। कैसे? ये जो 2 मेंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये टोटल, इनके टोटल वोट्स की 1/3 है जीएसटी काउंसिल में। बाकी ये 31 मेंबर्स के वोट्स 1/3 है, सॉरी 2/3 है। इनके 1/3 है, इनके 2/3 है। यानी, और जीएसटी काउंसिल का रूल है कि कोई भी प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल में अगर 75% लोग एग्री नहीं है तो पारित नहीं होगा। तो अगर कोई भी प्रस्ताव इनके द्वारा लाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इन सबों के द्वारा, जो 31 मेंबर्स हैं अलग के द्वारा, तो ये तब तक पास नहीं होगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री ना करे। क्यों? क्योंकि अगर 1/3 वोट हटा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कितना बचेगा? 33% तो ऐसे ही गया, तो 66% ही मेजोरिटी में रहेगा। अगर सब स्टेट गवर्नमेंट्स मानेंगी तो तब तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा दबदबा है इस पर। और इसमें कुछ ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाइस वर्सा भी लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर कोई प्रस्ताव लाती है, तो अगर सब स्टेट गवर्नमेंट्स निश्चय कर ले कि इसको पारित नहीं होने देना है, तो वो 2/3 मेजोरिटी खींच लेंगे। तो 66% से 33% से सेंट्रल गवर्नमेंट भी पारित नहीं कर सकती है। हाँ, हो सकता है सेंट्रल में जो पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है, उसकी अभी वर्तमान में जो बीजेपी है, उसकी सरकार बहुत सारे स्टेट्स में है, तो वो मान जाए। लेकिन जो अपोजिशन के भी लोग हैं, वो भी अगर एकजुट हो जाए और इसके खिलाफ अगर कर दे, कोई भी अगर सरकार ऐसा बिल लाती है, ऐसा प्रस्ताव आती है जो देश के हित में ना हो, फॉर एग्जाम्पल, तो हो जाए, तो ये नहीं पारित हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए अपोजिशन तो 33% तो कॉन्स्टिट्यूट करता ही होगा, 33 नहीं तो कम से कम 25 तो कॉन्स्टिट्यूट कर ही लेगा, कर ही सकता है। लेकिन अभी तक वर्तमान में ऐसा कोई एक्ट पारित हुआ नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। इसलिए अभी भी ये एक देश की, मतलब इंडिया की अचीवमेंट दैट यहाँ पे दिया है कि द मोस्ट डिसीजंस हैव बीन अनएनिमस।
अधिकांश डिसीजन एनोनिमस, मतलब सब लोग माने हैं। अपोजिशन के सरकारें, जो स्टेट अपोजिशन सरकारें जो भी इसकी मेंबर्स हैं, मतलब उनके फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर है तो वो मेंबर हुई, तो वो भी मानी है इस पर। फॉर एग्जांपल पंजाब में बीजेपी नहीं है, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं है, और स्टेट्स में बीजेपी नहीं है, केरला हो गया आपके, साउथ सदर्न स्टेट्स में बीजेपी नहीं है, वहाँ के मेंबर्स माने हैं इस बात को। तो ये एक अच्छा आइडिया है। ये जीएसटी काउंसिल यही है, सुप्रीम बॉडी है। तो ये इस बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जीएसटी का थोड़े प्रोविजंस क्या हैं, टेक्निकल टर्म्स के बारे में। जीएसटी में ये प्रावधान था कि जो 20 लाख से कम के टर्नओवर वाले व्यापारी हैं, दोज बिजनेसमैन टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख, दे विल नॉट कम अंडर जीएसटी, पहला प्रोविज़न। और कुछ स्टेट्स में ये लिमिट 10 लाख रखी गई है। इन सम स्टेट्स दिस लिमिट हैज़ बीन सेट अप 10 लाख। और 10 लाख रखी गई है लिमिट। इसे 11 स्टेट्स ऐसे हैं, 8 नॉर्थ ईस्ट के और 3 उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। ऐसे कोई स्टेट्स हैं जो मतलब वहाँ पे लिमिट 10 लाख है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा अगर टर्नओवर है तब जीएसटी में आएंगे, उससे कम है तो नहीं आएंगे। और 11 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब स्टेट्स में ये लिमिट 20 लाख है। अच्छा, दोज ट्रेडर्स और बिजनेसमैन हुज टर्नओवर इज अप टू 50 लाख, सेकेंड प्रोविजन 50 लाख है, they will come under GST consideration, but they have an alternative. Alternative is the government's compound scheme. So if the trader whose turnover is up to 50 lakh, 50 lakh तक है, so if he does not want to pay GST, he does not want to come under consideration of GST, so he or she can join compound scheme of the Indian government, in which the government tells that to pay a small percentage of your turnover, of your profit एज ए टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड रिमेन फ्री। मतलब एक छोटा सा हिस्सा अपने प्रॉफिट का, अपने इनकम का वो पे कर दीजिए गवर्नमेंट को टैक्स के लिए, और जीएसटी से बच सकते हैं। ये गवर्नमेंट की कंपाउंड स्कीम है। हाँ, दोज ट्रेडर्स हुज टर्नओवर इज मोर देन 50 लाख्स, देन दे विल हैव टू पे द जीएसटी। भाई अब ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा। 50 लाख का मतलब आपका 4 लाख, 4.5, लगभग 4 लाख महीना हो गया पर मंथ, 4 लाख पर मंथ। And those traders whose turnover is 20 lakh, less than 20 lakh will not come under consideration of GST. So 20 लाख भी चाहिए तो 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख पर मंथ तक के भी अगर सैलरी है आपकी, मतलब इनकम है बिजनेस से, तो तब भी आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो ये कंसिडरेबल, मतलब पेपर वर्क इसका अच्छा था पर इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया है। इसमें कुछ केसेस थे कि मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के, तो मलेशिया ने जीएसटी को अपना के फिर ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि मलेशिया में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया उतना और इसको ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया में भी इससे जीडीपी में गिरावट आई, जो 3.85% था वो 3.06% हो गया। तो ये तक कुछ केसेस थे यहाँ पर। और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर दिस? सॉल्यूशंस और यू कैन सी दैट बेनिफिट्स आल्सो। प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग जीएसटी आर कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स। हाँ, जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट के बारे में बताना था मेरे को आपको। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट स्टेट्स दैट in 5 years after the implementation of GST, till 5 years, the state's government will endure a 14% increase in the revenue in GST. And if they are failed to do so, then the central government will provide compensation regularly twice in 1 month. But the compensation has never happened regularly on this basis. कभी कभी 3-4 महीने पर एक बार निकाल देते हैं वो लोग, तो वो थोड़े होता है इस तरह से। तो वन मेजर प्रॉब्लम इज कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स, और दिस इज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद टू मच डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड। किसी भी कंपनी को अगर फाइल करना है जीएसटी तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, टू मच डॉक्यूमेंटेशन, उसको भी कम करने की जरूरत है। थर्ड, वेरियस स्लैब्स हैं। अब 1%, 3% टैक्स, 5%, 12%, 18%, 28% स्लैब्स है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस पर। तो जो अपोजिशन के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा भी है कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो वो सिर्फ एक टैक्स स्लैब रखेंगे, ये अलग अलग टैक्स स्लैब नहीं रखेंगे। तो देखते हैं जब सरकार में आएंगे तब देखेंगे हम। फिर बात है इसके बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो ये था पूरा जीएसटी के बारे में चर्चा। नाउ इन दिस वीडियो वी हैव
primarily focused on the GST's drawbacks. अभी तक हमने, but is that true that GST has only endured drawbacks? GST से क्या इंडिया को कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है? So was that the Prime Minister of India wrong by announcing that GST will change the economic structure of the country? The answer is we don't know. It will change or not, it cannot be judged on the 4 to 5 year basis, because GST is only implemented in 2017 and we have only crossed only 4 years from that. You can say 5 years, 4.5 years. So you can't judge too much too early. It is too early to judge GST. But yes, we can judge its drawbacks and avoid them to make GST a very successful plan in India. Many international organizations like World Bank has criticized the complex structure of GST, and they have suggested that GST reforms should be needed in India. But now we will discuss about the benefits of GST. What are the benefits of GST? There are total 6 benefits. First is increase in number of taxpayers. तो GST के आने से जो रजिस्ट्रेशन 65 लाख था, तो 17 में GST टैक्स पेयर के अंदर रजिस्ट्रेशन जो टैक्स पे करते थे, वो GST रजिस्ट्रेशन के अंदर 1.29 करोड़ हो गया. तो ये एक आया इंक्रीज इन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स नाउ. उसके बाद GST कलेक्शन हैव ऑन ए कांस्टेंट राइज. यू शुड हैव हर्ड ऑन न्यूज़ दैट कॉन्स्टेंटली दैट इन एवरी 3 to 4 months दैट GST कलेक्शन आर ऑन ए रिकॉर्ड टाइम हाई. सो दैट इज ऑल्सो GST का कलेक्शन बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हो सकता है. ये विश्वास दिलाता है कि एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हो सकता है इन फ्यूचर, इन लॉन्ग रन. थर्ड, मोस्ट डिसीजंस हैव बीन अनोनिमस. सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में भी एक पॉजिटिव बात ये है कि ऑल्दो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर वोटिंग पावर इन द GST काउंसिल, बट द मोस्ट ऑफ डिसीजन हैज बीन अनोनिमस, मींस सर्वसम्मति से पारित हुआ है. रेट रैशनलाइजेशन. ऑल्दो देयर इज a criticism of GST that there are various tax slabs in GST, but only 3% of the total items came under 28% tax slab. So the highest tax slab is 28% in GST, and in that slab only 3% of items come under in that slab. ये भी एक बात है इसमें. उसके बाद ये जो 4 मैंने यहाँ पर आपको बेनिफिट्स गिनवाए. 2 और बेनिफिट्स हैं कि रिड्यूसेस पर्सन इंटरफेस, मतलब कि आदमी से आदमी का कॉन्टैक्ट घटाता है. नाउ वी विल से कि इज दैट फॉर कोविड गाइडलाइंस? नो, नॉट फॉर कोविड गाइडलाइंस. ये है कि करप्शन. अगर आप इनकम टैक्स में जाए सबसे ज़्यादा करप्शन वही होता है. तो अब यहाँ पर एक GST नेटवर्क है जो इन्फोसिस द्वारा बनाया गया है कि सब काम ऑनलाइन होता है. इस GST का रिटर्न्स, पेमेंट्स कुछ भी ऑनलाइन होता है. तो अब आप इसको आदमी से आदमी का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो कम करप्शन होगा तो पैसा बचेगा फॉर द कंट्री. और 6th है ई-वे बिल्स, मतलब द बिल्स जनरेटेड थ्रू इंटर ट्रेड और इंटर ट्रेड सोल्यूशंस. तो ये भी 13% इंक्रीज हुआ है. 52 लाख से 65 लाख हुआ है. तो इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई 13% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017 टू फाइनेंशियल ईयर 2020. नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2019 टू फाइनेंशियल ईयर 2020, मतलब एक साल में 13% इंक्रीज हुआ है. ई-वे बिल्स का मतलब द ट्रेड बिल्स जो जनरेट होते हैं इंटर स्टेट ट्रेड और इंट्रा स्टेट ट्रेड में. तो ये GST की कुछ बेनिफिट्स हैं. GST की कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए. तो हम यहाँ पर अब केसेस ऑफ मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया वी हैव रेड कंपाउंड स्कीम. व्हाट इज कंपाउंड स्कीम? वी हैव रेड व्हाट इज GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. वी हैव रेड अबाउट CGST, SGST, IGST, UTGST. We have read about GST council, its members, its breakup of members. So many things we read in this video. So one thing, before ending this video, one thing I will say that it is too early to judge GST because it is a major structural change in the Indian economy, and this structural change need to be stabilized, then need to be implemented properly, then it will endure huge amount of results. So wait and watch we will, but we can certainly review. We have to review its drawbacks. That's why I have made this video to avoid our mistakes and to make GST a huge successful program. So, because GST is a very good thing because we can avoid various type of taxes. It can reduce time, it can increase efficiency, but it should be implemented properly.
So with that note, I am ending this video. So please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon. So thanks for watching and keep watching. Thanks.